कैंसर देखभाल के लिए एसएसओ कैंसर अस्पताल बना एआई संचालित डायग्नोस्टिक्स शुरू करने वाला मुंबई का पहला अस्पताल। जी हां, आपको बता दें, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एसएसओ कैंसर अस्पताल ने आज एसएसओ क्लिनिशियल फोरम कैंसर देखभाल में एआई आधारित नवाचार का आयोजन किया, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा भागीदारों को ऑन्कोलॉजी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। इस कार्यक्रम में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और डिजिटल उपकरण भारत में कैंसर का पता लगाने का उपचार को उत्तरजीवित को बदल सकते हैं। मुंबई में कैंसर देखभाल के लिए एक अग्रणी कदम में एसएसओ कैंसर अस्पताल ने आज एसएसओ मीडिया और क्लिनिशियन फोरम में क्यूर एआई के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। कैंसर देखभाल में एआई आधारित नवाचार अस्पताल मुंबई में क्यूर एआई संचालित इंसिडेंटल प्लोनरी नोड्यूल यानी कि आईपीएन का पता लगाने वाला मुंबई का पहला अस्पताल बना। आइए देखते हैं खास कवरेज। They were not here, so we have not spoken till now. But so J&J has been the partner, the industry partner with us, who has connected the dots between Cure AI and SSO, and helped us get this wonderful platform to help our patients. So thank you, J&J. Thank you for providing this opportunity and the confidence in SSO. The ethos will continue to remain organ-specific, high-quality cancer surgery, so that we can transform the landscape of cancer care in India. Present Cure AI and lead the project BDZ from CureSide. Before I actually start, I want to first thank the panel here. Without your support and guidance, I think Dr. Vivek spoke about scaling with empathy. Without the support of innovative surgeons, there is no AI company in the world which can even dream of functioning. So we are here today because you have allowed us, you have put our trust in us, and it is your empathy for the patient which is helping us show our value in our day-to-day objectives. I feel SSO, even without AI, is at the top of the pyramid when it comes to innovation. The fact that you have a vision of specialized cancer care, I think that that will only increase with AI. We are very, very happy that we are able to play a role in your journey of getting patients to surgery faster, so that we can help save more lives, because as you already mentioned, 80% of all lung cancer cases are diagnosed right at the end. So Cure has that mission, and in that mission we look for partners who share similar values, similar endeavor for innovation, and Johnson & Johnson exemplifies both those values. We've been very fortunate to partner with the MedTech division at J&J, and we hope to scale things further, and together, combined with the vision that J&J had for Project BDZ and the trust which the surgeons at SSO are playing with us, we are hoping that our AI can play a small role in helping save a few lives. Thank you so much. We discuss about the AI and its implication in the surgeries. So I'm Dr. Jitesh, and I'm working as a thoracic oncosurgeon at SSO, and majority of my work deals with lung cancers. So talking about lung cancer stands number one cancers in males and females combined. And it is the number one cause of cancer-related deaths, to the fact that the number of people dying of lung cancer is more than the next four combined. So the problem here is by the time the lung cancer is diagnosed, 80 to 85% of the patients are advanced stage or metastatic stage, and where the complete cure is not possible. Best way to diagnose the lung cancer is by CT scan. But CT scan is not feasible most of the times, since we don't have a national guidelines or a national program where everybody is screened, like breast cancer or a cervical cancer. There are national screening programs, but which is lacking for the lung cancer. So the idea is to diagnose the lung cancer at an early stage. If we do a normal routine X-ray, we may not find the lesions, which are small to be seen on an X-ray. By the time it is seen on an X-ray, it is already advanced, and where the treatment is going to be palliative or just to prolong the life of the patient. And complete cure might not be possible at this stage. So now talking about the Cure AI, which is a AI in which we are going to do screening of the X-ray. Sure, Pandey. I was supposed to tell about how AI helps in operation theaters.
So AI is coming in a big way in all the aspects of the treatment we have been hearing since long. Other places in medical field is coming in many ways. So in starting from the diagnosis, treatment, even in the follow-up, at every step, even it's involved in the hospital management also, how the things we can avoid the regular mishaps or how it can help. In diagnosis also, like we get help many times AI suggests like when the number of like human has a limited ability to remember and all those things. So when AI is there, your all last data is fed into that. On that basis, you can predict or you can take decision on that basis. During intraoperative also, that many times we are in dilemma what to do, what way to go, and so then if AI is there, so you can immediately get the data. If we have done this way in this kind of patient, so what was the result? And same way in other kind of the treatment therapy, how they affect. So based on that, we can take the immediate decision. We don't have to remember if we forget something. And as a human, we forget something, then afterwards you remember if I could have done this. So all the data you get together. So it's a smartly helps in that part. Even in post-operative cases also, many times many complications, many things comes where you have to take, doctors are busy seeing here and everywhere, and many complications are there. So how to deal with complication? There are many ways, it's not right or wrong, there are many ways of dealing with the complication. So even in that you get help, if all the data you get, if you manage this kind of patient in a particular method, so what was the result, and same way. And depending on the patient need also, that will depend. So all the data you feel, you get the answer, probable answer from there. And of course, over and above all, human is there, doctor is there to take decision. But definitely that will help with with all the information. So even in hospital management, lot of things like is streamlining the things is going to come big way. It will reduce the manpower. Mainly thing, it will relax your manpower from the other things where they are continuously busy in doing other works, small works that AI will help. So anything, checking the records, in the billing and all those things, AI will help that we will have a broad idea about those things, and it will indicate that where some mistake is happening or something we are missing there, even the treatment part. So it's all where it's going to come in a big way. So it's very much helpful to us. सिस्टम में इंटीग्रेट करने वाले AI, इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। ये सेम कॉस्ट में जो नॉर्मली आप एक्सरे कराते हैं सेम कॉस्ट में रहेगा। इसके लिए आपको एडिशनली कोई पे नहीं करना है। अगर कोई लीशन डिटेक्ट होता है AI के थ्रू, उसका आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एक्सरे जो हम नॉर्मली स्कैन सेंटर में कराते हैं, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है जिसमें बहुत सारे एक्सरेज होते हैं, उसमें से छोटे लीशंस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम। तो AI उस चीज़ को हेल्प करेगा और डॉक्टर्स को कि वो जो लीशन जो मिस आउट हो रहे हैं वो लीशंस को हम पिकअप कर पाएंगे, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। और अगर कुछ लीशन दिखता है तो हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सब्सिडाइज रेट में ही करेंगे। ये आपको लंग कैंसर हो सकता है, जो कि अभी रिसेंट डेटा आया है जिसमें 40% ऑफ द पेशेंट्स जो है वो कभी स्मोकिंग नहीं किया है। 40% पेशेंट्स फीमेल्स भी है उसमें, जिनमें एडिनोकार्सिनोमा जो एक वैरायटी होता है लंग कैंसर्स का, वो बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये पेशेंट्स में स्मोकिंग का कोई हिस्ट्री नहीं होता है, स्मोकिंग के बिना भी ये कैंसर हो सकता है। तो एस्टैब्लिश किए, बट आजकल जो हमारा एयर पोल्यूशन है इन एंड अराउंड, अ लॉट ऑफ अस naturally become passive smokers. So what our research is showing is that and a lot of times this comes as a shock for patients. Patients बोलते हैं कि we never smoked, हमको कैसे हो गया? But this is a major prevalence which we are seeing that it can happen to non-smokers as well. So the best way is to get annual physicals done, क्योंकि आपका annual physical में chest X-ray होता ही है. Chest X-ray में आपका early stage detect होने का बहुत chances है. We have seen countless such examples all over the world, in the US, in UK, where वो annual physical के लिए आए। annual physical के लिए कोई भी चलता फिरता इंसान आता है without any symptoms, उनके chest में उनको nodule दिखा, within a matter of 1 month that they went from an X-ray to a CT to a biopsy to a lobectomy and they were cured. So वही हमें मॉडल रेप्लिकेट करना है इंडिया में, that if we can do this outside because we now have the surgeons, we have the infrastructure, we have the pathways, we also have the AI now, तो यही चीज़ हम यहाँ भी रेप्लिकेट करने का गोल है। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एज आपका 55 के ऊपर है और आप 15 से 20 साल से आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो साल में एक बार लो डोज CT स्कैन कराना है। ये गाइडलाइंस के हिसाब से ये प्रूवन फैक्ट है कि इससे आपका सर्वाइवल जो है वो 25% बढ़ जाता है अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया CT स्कैन के थ्रू।
दूसरा इसका शुरुआती लक्षण में ये है कि पेशेंट को अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, और पेशेंट का वजन कम हो रहा है, आवाज़ में चेंज आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है, ये शुरुआती लक्षण है। इससे हमको थोड़ा आइडिया आता है कि लंग कैंसर हो सकता है। बट ये नॉर्मली कफ एंड कोल्ड में भी होता है, तो हम यूजुअली ये सब सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। ओवर द काउंटर या फिजिशियन के पास जाके हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। बाय द टाइम वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं या उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब तक वो ऑलरेडी एडवांस हो चुका होता है। तो अगर खांसी अगर आपकी 2 हफ्ते से ज़्यादा है या खांसी में खून आ रहा है तो आपको सीटी स्कैन कराना है, ये एक है। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आपको, अगर स्मोकिंग का हिस्ट्री है, आप काफ़ी टाइम से स्मोकिंग कर रहे हो या आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, तो आपको लो डोज सीटी स्कैन कराना है, जो साल में एक बार हो। टॉकिंग अबाउट लंग कैंसर, लंग कैंसर में स्टेज 1 में जो सर्जरी होता है वो डिपेंड करता है आपके कौन से पार्ट में इन्वॉल्वमेंट है। अगर छोटा सा सेगमेंट इन्वॉल्व है तो हम सेगमेंटेक्टोमी कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ थोड़ा सा टिश्यू ही निकाला जाएगा। अगर वो एक लोब इन्वॉल्व है तो लोब निकाल सकते हैं, अगर सेंट्रल ट्यूमर है तो पूरा लंग निकालना पड़ता है। वही अगर अर्ली डिटेक्शन है, साइज अगर उसका कम है, तो मार्जिन के लिए जितना चाहिए होता है उतना ही हम टिश्यू निकालते हैं। जैसे सेगमेंट में बहुत कम टिश्यू निकाला जाएगा, और जैसे जैसे वो एडवांस होगा तो उसका सर्जरी का इंटेंसिटी भी बढ़ता है। अगर नोड्स में फैल गया है या साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस साइड का पूरा लोब या पूरा लंग निकालना पड़ेगा। वही अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट करते हैं तो बहुत कम टिश्यू निकाला जाता है, तो नॉर्मल जो लंग फंक्शन रहता है पेशेंट का सर्जरी के बाद एकदम नॉर्मल जैसा होता है। कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, नेक्स्ट डे से पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज सब कुछ कर पाता है, वॉकिंग कर पाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं आती है उसमें। ये डिफरेंस है कि अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में। दूसरा है कि लेट स्टेज अगर एडवांस स्टेज हो गया, स्टेज 4 में बीमारी में पता चला है, तो सर्जरी इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो उस टाइम पर सर्जिकली सिर्फ हम पानी कम कर सकते हैं अगर पानी भरा हुआ है, या पेन कम करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकली उस ट्यूमर को निकालना इम्पॉसिबल होता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों। Hospital or whichever doctor or whichever health system is using our AI, they already have a preset patient journey. So what the first goal we have is for us to understand what that patient journey is and see what are the steps which AI can impact. So most patient journeys for lung health start with a chest X-ray. So that's the first thing we did कि chest X-ray से हमको क्या-क्या information मिल सकती है. We started with TB. Now we are doing lung nodules. We are extending our research to COPD because that one image, that one low modality, low radiation image will tell us a lot. एक बार वहाँ से start हो जाए, then we work with the health systems and see कि ये patient is fitting into this particular category. Basis this, what would the physician recommend? So at no point will AI ever be good enough to make decisions. AI's goal is to simply help the patient, enable them with the extra information which will help them potentially prescribe a CT scan or put them on surveillance or things like that. And basis which this typically happens today symptomatically. Because it's happening symptomatically, 80% of the people are coming in stage 4. When 80% of the people are coming in stage 4, survival rate, 5-year survival rate is 20%. So we want to flip that. We want 80% to come in 1 and 2 to get a 80% survival rate. And the goal is, like Sir mentioned, the minute you have a patient in this pathway, the earlier the LDCT is done, which is now fortunately fairly easily accessible and available, the lesion can be characterized and then the next step, whether it's a bronchoscopy or a surveillance, is then put in. So end of the day अगर आप देखो तो लंग जैसे निरंतर एक एडवांसमेंट होता रहता है। जैसे पहले ओपन सर्जरीज करते थे, फिर हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं, अपने लेप्रोस्कोपी आया। तो पहले बहुत ही दिमाग में होता था ये कैसे दूरबीन से देख के कैसे कर सकते हैं, पर आज हर कोई खुद डिमांड करते हैं, तो भी पेशेंट आते हैं वो लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। इसी तरह से एडवांसमेंट है रोबोटिक सर्जरी, जो कि और अच्छा विजन देता है, काफ़ी अंदर काफ़ी उन्हें और ऑर्गन्स को बड़ा करके दिखाता है, जिससे उनका डिसेक्शन जो करते हैं ऑर्गन्स को काफ़ी अच्छा दिखता है, और एक माइन्यूट लेवल पर डिसेक्शन होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। जैसे कि बहुत दूर से कोई चीज़ हम देखते हैं वो कम दिखती है, और नज़दीक से कई में जैसे एक घड़ी वाला आपका देखता है, एक आप आँख से घड़ी रिपेयर नहीं कर सकते आज की डेट में, वो आँख पे लगा के करता था, आजकल माइक्रोस्कोप आते हैं उससे देख के तो अच्छी तरह से वो छोटे से छोटे पुर्जे बदल देता है, और उसको अच्छी तरह से बदलता है देख के, और बता सकता है ये चलेगा नहीं चलेगा।
इसी तरह से उसका एक साधारण एग्जांपल है, ऐसे रोबोटिक सर्जरी में कई गुना बड़ा दिखता है अंदर, और इसकी तरह से पेशेंट को एक प्रूवन फैक्ट है कि पेशेंट को पेन भी कम होता है लेप्रोस्कोपी के उसमें, और पेशेंट तुरंत चलने लगता है। उनका डिसेक्शन एरिया जो डैमेज होता है डिसेक्शन की वजह से वो बहुत कम रहता है, इससे पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है। और उसे मॉनिटरी उस पर देखें तो वो पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और अपनी ड्यूटी जल्दी ज्वाइन करता है, घर वालों को सपोर्ट उसकी अर्निंग अर्ली स्टार्ट होती है। और आजकल रोबोटिक सर्जरी में बहुत सारे ऑप्शन है, इवन दूर से हम जैसे यहाँ पे हैं, हम टीयर 2 सिटीज़ में बहुत लोग, यहाँ से लातूर में कोई ऑपरेट कर रहा है तो डॉक्टर संकेत, डॉक्टर विवेक के लोग यहाँ से गाइड कर सकते हैं उसको कि कैसा कैसा सर्जरी करना है और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैन पावर के रिक्वायरमेंट ऐसे, क्योंकि हर जगह ये लोग नहीं पहुँच सकते तुरंत, उसमें भी हेल्पफुल होता है। और बहुत सारी सर्जरीज जहाँ पे हम पहले पूरी तरह से उनका मार्जिन, कैंसर में विशेष तरह से उसका मार्जिन निकालना, एक जो कि बीमारी से युक्त नहीं हो ऐसी बीमारी निकालना मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको विजुअलाइजेशन और अच्छा होता है, उसको पूरी तरह से वो निकाल सकते हैं मिनिमम से मिनिमम डिसेक्शन में। तो मेरे ख्याल से आगे फ्यूचर में ये और बढ़ता जाएगा, जैसे लोग ज़्यादा से शुरुआत में काफ़ी डेफिनेटली कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, सीखना पड़ता है ये चीज़ें, पर एक बार सीखने के बाद में बहुत लोगों का हेल्प होता है और अच्छी तरह से सर्जरी होता है। जैसे कैंसर काफ़ी फैल रहा है तो उसके बारे में नहीं, कैंसर आज हमारे देश में कैंसर के पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियों का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस युग में हमें कैंसर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैसे मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे हो सके, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कैसे हो सके, क्योंकि आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। आज सबसे पहला फेज़ तो आता है, अगर किसी को मालिक ना करे ये बीमारी अगर होती है तो प्राइमा फेसी टेस्ट होता है उसका जो, तो टेस्ट के अंदर ही लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पहले कोई एक्सरे करता है, कोई फिर अलग अलग तरह का जो टेस्ट है उसमें वो करता है। अब SOS यहाँ पर डॉक्टर संकेत मेहता और उनकी जो टीम है पूरी, उनके कलीग्स हैं, सब ने मिलके यहाँ पर जो AI का उपयोग करके टेस्ट डायग्नोस करने के लिए कि इसमें सही में कैंसर की बीमारी है या नहीं है, उसके लिए आज जो यहाँ पर रखा है और ये सिस्टम यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट किया है, मुझे लगता है कि इसको लेके काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लोगों को जो इमीडिएट पहले स्टेज पे बायोप्सी वगैरह के प्रोसेस में जाना पड़ता था, पेनफुल वो प्रोसेस होता था, बायोप्सी करने के बाद नेगेटिव भी आता था वो, तो कहीं ना कहीं AI प्रोसेस में जब टेस्टिंग होगा तो उसी में डिटेक्ट डॉक्टर्स कर लेंगे कि इनको ये बीमारी नहीं है, दूसरी कोई बीमारी है, TB है या कुछ अलग तरह का कोई बीमारी है। तो उससे इस टेस्ट का फ़ायदा कम से कम उन पेशेंट को होगा जिनको कैंसर जैसी चीज़ एक शंका होता था, सस्पेक्ट होता था, और वो जो अब कैंसर के सारे टेस्ट से जिसको गुजरना पड़ता था वो लोग बचेंगे और ये इसमें आसानी होगी। और आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का युग है, AI का यूज़ भी है, मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इस हमारी जिम्मेदारी बनती है, और डॉक्टर संकेत मेहता जैसे नामवर डॉक्टर जिन्होंने इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाके उन्होंने कैंप भी किया है, गरीबों की भी मदद की है, उनकी खुद की भी ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ज़रिए गरीबों को भी, गरीब पेशेंट्स को भी मदद करने का काम करते हैं। और आज जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है AI, उसका इस्तेमाल मुंबई में मुझे लगता है कि पहली बार यहाँ पर SOS हॉस्पिटल के ज़रिए डॉक्टर संकेत मेहता और इनकी पूरी टीम ये कर रही है, और हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा पूरे मुंबई शहर के लोगों को इस AI टेस्ट के माध्यम से होगा। सर, जैसे कैंसर बीमारी सुन के ही इंसान डर जाता है, जैसे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो टेस्ट आपने स्टार्ट किया मुंबई में या पहली बार, तो वो कितना यूजफुल होगा? नहीं, ये इस हॉस्पिटल ने और इन डॉक्टर्स ने मिलके जो AI का सही तरह से यूज़
मेडिकल सिस्टम में करने का जो फैसला किया है, जिसकी शुरुआत ये कर रहे हैं, इसका फ़ायदा डेफिनेटली ख़ास करके जनरल कैंसर के सस्पेक्ट जो पेशेंट होते हैं उनको, और कैंसर पेशेंट को भी आसानी से वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और कैंसर नहीं है तो उसका भी मालूमात हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसका फ़ायदा बहुत है, इसका एडवांटेज बहुत है। एआई, जैसे मैंने पहले कहा कि एआई का मिसयूज़ भी होता है, और अगर लोग प्रॉपर यूज़ करें तो उसका फ़ायदा भी होता है। तो ये सारे इंटेलिजेंस डॉक्टर्स ने मिलके ये जो तैयार किया है एआई का यूज़ करके, और ये डायग्नोस करने का जो एक प्रोसेस सिस्टम शुरू किया है टाइप करके, उसका फ़ायदा डेफिनेटली लोगों को होगा। तो सर ये कितना कॉस्टली है या कितना? नहीं, इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड एक्सरे आपका होता है, जो रूटीन हेल्थ चेकअप में या किसी भी चीज़ में, सिर्फ ये बैकग्राउंड में काम करता है, और जो अर्ली स्टेज डाउटफुल लीजन्स है उसको वो फ्लैग करता है रेडियोलॉजिस्ट को, ताकि वो बोल सके कि नहीं और आगे टेस्ट करना है और थोरेसिक सर्जन को कांटेक्ट करना है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि 80% लंग कैंसर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया फ्रॉम कैंसर डेथ में हाईएस्ट इज लंग कैंसर, क्योंकि 80% लंग कैंसर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। तो ये माध्यम से हम अर्ली स्टेज में, जब भी वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हो, वो स्टेज में हम, जब भी कोई सिम्टम नहीं है, वो स्टेज में डायग्नोज करके पेशेंट को हम सर्जरी के द्वारा क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर जितेश थोरेसिक सर्जन हैं, दूरबीन से ये ऑपरेशंस करते हैं, तो वो स्टेज में डायग्नोज होना ज़रूरी है, तब हम ऑपरेशन करते हैं। सर एआई के थ्रू सिर्फ कैंसर को ही डिटेक्ट किया जा सकता है, और भी बीमारी डिटेक्ट हो सकती है? बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें। एआई से काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस में इंटीग्रेट करने के बाद बहुत सारी बीमारियों को बहुत अर्ली स्टेजेस में पता कर सकते हैं। ये सेम सॉफ्टवेयर टीबी को भी डायग्नोस करता है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को भी डायग्नोस करता है। सो इंडियन पॉपुलेशन में जैसे ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है हमारे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को कभी ना कभी लाइफ में एक्सपोज हो चुके होते हैं, तो उनकी छाती में कुछ ना कुछ लीजन्स दिखाई देंगे, क्योंकि नॉर्मली हम जब एक्सरे देखते हैं उस चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो एआई इंटीग्रेटेड है तो उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई स्लाइटली डाउट भी है उसमें, तो वो पिकअप होगा उसमें, तो उस हिसाब से वो जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे उसे। सर एसएसओ हॉस्पिटल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एसएसओ हॉस्पिटल जो हमारा है, हम अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। जो बाहर जो ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होती है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल्स में, जो फैसिलिटी होती है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। और हमारी तरफ से भी हम जितना हो सकता है उस चीज़ को हेल्प करते हैं, ट्रस्ट के थ्रू या बाकी माध्यम से भी। हम दूसरा, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एंड वी डू ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी हर एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है। जैसे थोरेसिक सर्जन सिर्फ थोरेसिक के डॉक्टर करते हैं, ताकि वो रोबोटिक, मिनिमल इन्वेजिव, जो बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी है वो भी हम दे सके एट द मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट। वैसे सर आपका कोई भी पेशेंट पे आपने ये अप्लाई किया है ये अभी तक? नहीं, ये अभी इंटीग्रेट हुआ है, अभी इस महीने से वो लॉन्च होगा। जितने भी एक्सरेज होंगे हमारी जो नीचे सेंटर है पल्स डायग्नोस्टिक्स में, वो सारे जो भी एक्सरे होता है, भले ही वो किसी भी सेंटर से आने दो, किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से आने दो, वो सॉफ्टवेयर में जब वो आएगा एक्सरे, उसमें अगर कोई लीशन दिखाई देता है तो हम उस पेशेंट को इंटीमेट करेंगे और उसका आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सर इसका कितना सक्सेस रेशियो है? इसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, 99% सेंसिटिविटी है। उसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट 10% के आसपास है। अगर उसमें होता है कि अगर आपने जो डिटेक्ट किया है उसमें से पॉजिटिव कितने चांसेस हैं, तो उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस 99% है कि उसमें पॉजिटिव आएगा। थैंक यू।